Yeah, good morning, everyone. So Good morning, today, sir. today we will discuss the trends, emerging trend rather in marriage in traditional Indian society. As we discussed it yesterday, so we are just going forward with the from previous wrap up for 2 minutes. Then after we will start. So what we discussed rather yesterday, that was something because of many regions, because of industrial revolution and many regions in modern time, this traditional Indian social system and one of the most important social institution, that is marriage, that has undergone big changes, drastic changes rather. So the reason for this is change in values. Change in value, I mean change in humanitarian values, and now we are just believing on utilitarian values as compared to earlier we were believing on these humanitarian values. Then after, there are many other factors like industrialization, urbanization, and then new jobs in cities. Then so many things are there. So many things are there which compelled youth as well as elder family member to shift from village, rather from traditional system of Indian society to modern system. So same is the case with, and no institution has left without change. And same is the case with this one of the basic institutional society, that is marriage. Many changes have been taken place recently in this modern time, and sometime it seems that totally it has undergone change. I mean, the marriage as an institution has undergone totally change. What if we see, there may be changes in structure, what the institutional aspect is same, and there is no much change that has been observed in institutional aspect of this marriage as an institution. Rather, there may be impact on associational aspect as well as structural aspect of marriage. But the traditional system is still persisting in spite of many changes in modern time. Yesterday we discussed the changes which have been taken place in the rituals which are being performed during the marriage, before the marriage, and after the marriage. Then after, the endogamy system, that has weakened now, and now people are just believing on exogamy system. With exogamy system, there is another factor which is very important to consider, that is change. There is a change in age of marriage. Age of marriage, earlier it was a child marriage in some places of the country, but constitutionally it was granted that there should be 18 and 21 year of age for boys and girls respectively to get married and just to legalize their relationship. But now, because of many regions, because of higher education, because of many regions, the age at marriage that has increased from 18 to 25 for girls, and 30 for from 21 to 30 for boys. So it is not mandatory, rather it is a voluntary. It is sort of volunteer uh, that these age of these young chaps have been increased. And another point we discussed, that was there is a decline in the parental control while executing or while going for spouse or the mate of selection. The selection of mate, rather spouse, a selection is no more based on the choice of parents. It is only the boy or girl who is just going for higher education, and they're selecting their life spouse as per their wish, as per their will. So there is a big change. There is a big change which have been observed in these 4 points, and today we will take the fifth one. Fifth one, which is just related to pomp and luxury, is another other point which has been added to this marriage as an institution in modern time. So just to celebrate
celebrate marriage in old time. It was just a some sorry कुछ गुड्डी के कागज लिए, कुछ मकोल, हम जिसको लोकल भाषा में अपने सफेदी कहते हैं, उसको लिया, घर की पुताई की, घर की सफाई की, और पुताई और सफाई के बाद सीधा हमने क्या कर दिया, गुड्डी कागज चिपकाए और सीधे सिंपल से तरीके से 200-400 रुपए का सूट खरीदा, प्लास्टिक के जूते खरीदे और ये लाल कपड़े खरीद लिए, और लड़के ने भी वैसा किया, पजामा कुर्ता लगा दिया और विवाह हो गया. बट नाउ it is time for pump and luxury rather. Now marriage has been shifted. Marriage shifted to marriage palaces. Or otherwise, if it is sorry, I'm speaking in English. तो अगेन दोबारा से अब एक चीज और क्या हो गई है कि अगर घर भी आपका बड़ा है तो खेत को खाली किया जाता है और फिर घर को ऐसे सजाया जाएगा कि वो मैरिज पैलेस ही है. तो उसमें पूरी की पूरी शोकेस. एंड आई वाज वंडर टू सी, अभी पीछे 2 हफ्ते पहले एक ब्याह हुआ था, उसका मैं गवाह बना था. वो मेरे मामा की बेटी का ब्याह था. तो मैं आई एम नॉट पिनिंग पॉइंट दैट मैरिज रादर. तो उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाली खास करके लड़कियां थी, प्लीज मुझे माफ करना, सारी लड़कियां मुझे माफ करेंगी. तो उसमें क्या था, जो परेशान करने वाला, जो एक मुझे बीइंग ए सोशियोलॉजिस्ट एक परेशान करने वाला जो एस्पेक्ट मुझे दिखा, दैट वाज कि लड़की जो है एक हर आधे और 1 घंटे में सूट चेंज कर रही थी. हर सेरेमनी के लिए पता नहीं कितने सूट दुनिया जान के भगवान जाने रखे हुए. और हमें ठंड लगी हुई थी, हमने जैकेटें लगाई हुई थी मोटी मोटी, और वो बिना स्वेटर के घूम रही थी साड़ियों में. और क्या होता है वो प्लाजो प्लाजो, पता नहीं भाई क्या क्या सूट्स हैं वो, आई डोंट नो. और वो साथ में सोने के गहने सूट छोड़कर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसको बड़े बड़े लटका के, इतने बड़े करके, हे भगवान दुनिया जान का. तो what I mean to say, it is just a pomp and luxury which is being shown in these marriages. और इसमें एक चीज और बता दूं आपको मैं, गहने जितने भी घर में है ना, सबको दिखाना है कि मेरे पास इतने गहने हैं. और गले में एक एक नहीं है, एक नहीं 3-4, जितनी भी मंगलसूत्र से लेके वो चेन पतली वाली मोटी वाली, वो फलानी ढिमकी, जितने भी हैं सब के सब सेट सूट सब डाल लेने, ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक सारे के सारे भर लेने. सेम इज द केस विद many, marriage these days become a matter of showing the things as which is known as pomp. दिखाना है, दिखावा बन गया है. और इस दिखावे की वजह से क्या चीजें हुई है, आम आदमी से प्रभावित होता है. इट इज वेरी गुड फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट. व्हाट इट लुक्स समथिंग आर्टिफिशियल, जो ओरिजिनलिटी है विवाह की वो खत्म हो जाती है, और वो अलग ही तरह का एक जो है लग्जरी को वहां दिखाने की कोशिश की जाएगी. चाहे उसके लिए मुझे अपना कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, या पता नहीं मुझे लोन लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट आई विल ट्राई टू बी लग्जूरियस एज कैन एज आई. जितना मैं हो सकता हूं उससे ज्यादा लग्जूरियस होने की कोशिश करूंगा. अब पहले क्या होता था, थालियां होती थी, सारे सबको थालियां मिलेंगी, गिलास मिलेंगे, उनको धोने वाला धोने महिलाएं लगती थी. आज कुछ नहीं है, आज थाली नहीं, आज तो सब कुछ जो है प्लेट्स में आता है. पेपर प्लेट्स, यूज एंड थ्रो वाले, सारा का सारा सिस्टम यूज एंड थ्रो वाला हो गया. एंड वी आर आल्सो गिविंग नैपकिन दीज डेज. तो दिस इज द पंप एंड शो. वो सारा का सारा वो दिखाने की कोशिश, घर की डेकोरेशन से लेके मैरिज को एग्जीक्यूट करने तक की कोशिश. अरे घर में मेरे पास ऑल्टो कार है अगर, तो ब्याने में ऑल्टो कार में नहीं जाऊंगा, उसके लिए मुझे बड़ी वाली गाड़ी चाहिए जो कि डेकोरेटिव हो. इनोवा कम से कम तो चाहिए, इनोवा तो कम से कम चाहिए. तो बट आई मीन टू से, अपनी गाड़ी ना लेके फिर उस गाड़ी किराए पे लेंगे, 10,000 पे किराया देना पड़े, आई डोंट माइंड, बट देयर शुड बी पंप एंड लग्जरी फॉर एवरीवन. उनको लगना चाहिए कि कोई भाई लाड़ आया. तो सो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये बहुत ही ज्यादा आज के टाइम में कस्टम एंड ट्रेडिशंस के ऊपर ये चीजें हावी हुई हैं. नंबर 6 है डॉरी सिस्टम. डॉरी सिस्टम अर्ली इट वाज वेरी वेरी पॉपुलर. ये बहुत इवल है. एक ऐसी भारतीय समाज के माथे पे कैसा धब्बा है, ऐसे कैसा दाग है. इट्स बोल्ट ऑन ऑन द फोरहेड ऑफ इंडियन सोसाइटी. परंतु आज के टाइम में अगर देखने की कोशिश करें तो डॉरी को डिफाइन करने की कोशिश करें तो डॉरी इज समथिंग व्हिच इज बीइंग गिवन टू आइदर ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, दोनों के लिए हो सकती है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी. इट डिपेंड्स, ये कल्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है. परंतु वो किस फॉर्म में होगी, इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश, इट मे बी इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरीज,
it may be in form of articles which are being given, स्वाज हम जिसको बोलते हैं, स्वाज और दाज जिसको हम बोलते हैं, और उसमें जब अपनी मर्जी से दे रहे हैं, that cannot be dowry, but when it is on demand, it is on demand, then it becomes dowry. तो तब वो समस्या बनती है कि मुझे कम से कम मैं प्रोफेसर हूं, तो मुझे कम से कम मेरा ब्याह हो तो मुझे कम से कम एक 10-12 लाख की कार तो मिलनी चाहिए. If someone is demanding like this, then it means it become a dowry. और इसका आज के टाइम में हालांकि डॉरी प्रोविजन एक्ट भी आए हैं और उसके चलते सारी चीजें बैन हुई हैं, रुकी हुई हैं, परंतु फिर भी नॉर्थ इंडिया में खास करके इट स्टिल परसिस्ट. आज भी इस डॉरी की वजह से कई बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है आज भी. और उसमें आज के समय में हालांकि इसमें चेंज आया है, मॉडर्न टाइम में इसमें चेंज हुआ है. चेंज होने की वजह जो है वो ये है कि हमारी बेटियां पढ़ लिख गई हैं और बेटियां अब नौकरियों में हैं. तो नौकरी अगर कोई कर रही है बच्चा, तो उसको नौकरी करते हुए जो पर मंथ वो कमा के लाएगी, दैट विल बी मोर देन ए डोरी. और आज के टाइम में सिंपल ये कहा जाता है, हमें तो भैया लड़की ही चाहिए, हमें डोरी डारी कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज डोरी प्रोविजन एक्ट इज आल्सो देयर. तो अगर कोई शिकायत कर देगा तो उनको नॉन बेलेबल उनका गैर जमानती वारंट निकलता है, उनको फिर जो भी डोरी की डिमांड करता है उन्हें भी सजा भुगतनी पड़ती है. नंबर 7 है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. पहले जो डिसोल्यूशन माने विवाह का खत्म होना, पहले ये नया ट्रेंड आया है. पहले विवाह को जो है 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता था, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं. 7 जन्मों के रिश्ते की वजह से डिसोल्यूशन तो सोच भी नहीं सकते. डाइवोर्स जो था, इवन सोचना भी एक सिन माना जाता था, पाप माना जाता था. परंतु आज के समय में क्या हो गया कि आज के समय में जो दिक्कत वो कहाँ हो गई है कि बात बात पर तलाक हो जाता है. आज के समय में जिसको बोलते हैं कि क्या शब्द यूज करते हैं, टॉलरेंस, जो अभी पीछे देश के लिए भी यूज होने लगा था शब्द टॉलरेंस, और चला गया. टॉलरेंस नाम की चीज बच्चों में अब रही नहीं है. बच्चों को मेरा मतलब ये हो गया कि यंग चैप्स हु जस्ट गॉट मैरिड एंड दे मे बी फॉल इन लव, दे मे बी आफ्टर फॉलिंग इन लव दे आर जस्ट गेटिंग मैरिड. परंतु मैरिज के बाद वो 6 महीने के बाद, साल के बाद एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है भाई, एडजस्टमेंट नहीं करते हैं और उसकी वजह से कई ऐसी इश्यूज क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से डाइवोर्स होना बहुत आम बात है आज के टाइम में. और ये आपको हैरान करने वाली बात, एक लॉ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आपको बताऊं तो हर साल जो है 3000 से ज्यादा डाइवोर्स के केस जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं हर साल. सोचिए कि क्या कहां हमारे जो समाज जो बेसिक इंस्टीट्यूशन था मैरिज, वो कहां जा रहा है, जिसे 7 जन्मों का बंधन माना जाता था कि एक जन्म तेरे साथ बंध गए तो 7 जन्म तक आगे 6 जन्म भी तेरे साथ ही होंगे. आज के टाइम में वो 6 जन्म के 6 महीने या 6 साल तक भी नहीं रुकते. एंड 3000 more than 3000 cases are being registered every year in India. So ये जो सेक्रेट वाला जो इन नॉट इंडिया, बेंगलोर शहर का सर्वे है, सिर्फ बेंगलोर में, ओनली बेंगलोर. पूरे हिंदुस्तान में तो हजारों लाखों के हिसाब से होंगे, ओनली बेंगलोर शहर का सब सर्वे एक का. और उसमें ये बताने की कोशिश की गई है. तो इसको रेफरेंस में रखकर 3001 शहर के अगर हों तो सारे भारतवर्ष में कितने होंगे, वो सिनेरियो को आप एंटीसिपेट कर सकते हैं, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं. तो रीजन क्या है, उसके विवाह के पीछे रीजन क्या है? एक तो लव मैरिज सबसे बड़ा रीजन है, नंबर 1 निकल के गया है. नॉन एडजस्टमेंट ऑफ कपल, जो मैंने अभी बात की, ये टॉलरेंस नहीं है, नॉन एडजस्टमेंट है ऑफ कपल आफ्टर मैरिज. उनको लगता है कि मैरिज बहुत अच्छी चीज है, सब ख्वाब दिखते हैं. और जब मम्मी पापा की मर्जी से होता था, पेरेंटल कंट्रोल था, तो मम्मी पापा सब कुछ देख समझ के उसको विवाह को करते थे. परंतु आज बच्चे खुद करते हैं, तो इस तरह की चीजें जो है वो सामने हमारे. एंड रीजन फॉर दिस इज, ये 2 चीजें हैं. तीसरा जो है डॉरी हरासमेंट है, लेक ऑफ कंपेटिबिलिटी है. कंपेटिबिलिटी मैंने एक जो है 10वीं पास है, दूसरा बीए है या एमए है, उसके साथ फिर कंपेटिबिलिटी नहीं बैठती है. और चेंजिंग रोल ऑफ विमेन भी बहुत बड़ी एक वजह है. तो ये 4-5 कारण बताए गए हैं जिसकी वजह से डाइवोर्स कितने केसेस जो फाइल हो रहे हैं. तो ये सारा का सारा विवाह को तोड़ना आज के समय में आम बात है. अर्लियर इट वाज नॉट. विडो रीमैरिज की बात आज होने लगी है. पहले विडो जब हो जाते थे तो उनका दोबारा विवाह कभी नहीं होता था.
कभी नहीं होता था। रादर वो अपने बच्चों को पालते थे और बच्चों को पालने के बाद वो पूरी तरह से उसी पति के लिए समर्पित रहते थे जो कि इस दुनिया में नहीं है। तो अब ट्रेडिशनली ऐसा नहीं था, परंतु आज के समय में जो महिलाओं को मजबूर किया जाता था महिलाओं को कि वो क्या करेंगी, अपनी लाइफ को वैसे ही वो लीड करेंगी। आज वो वैसा नहीं है। और आज सिंपल शब्दों में क्या हो गया, आज सिंपल शब्दों में जो है वो इस तरह की चीजें जो हैं वो खत्म हो गई हैं। और आज विडो रीमैरिज को जो है कानून भी उसको इजाजत देता है। और साथ में हिंदू सोसाइटी इतनी लिबरल हो चुकी है रादर कि एक बेटी का जो आने वाला समय है, और कई कारणों से कोई भी जो लड़की वो विडो हो सकती है, तो उसको विडो ना रखकर उसका विवाह एक बेटी बनकर, उसके सास ससुर उसको बेटी समझकर उसका विवाह जो है वो किसी और के साथ करवा देते हैं। तो ये 1950 में विडो रीमैरिज एक्ट भी एक बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक स्टेप था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि इस पे लागू होता है। और इफेक्टिवली कई सोशल रिफॉर्मर्स की वजह से ये सारी चीजें हुई थी। नंबर 9 है कि चेंजिंग रोल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। अब जो हस्बैंड वाइफ का जो रोल था वो चेंज हो गया है। आज पहले क्या था कि ये एक बहुत क्लियर कट डिवीजन होता था बीच में। जैसे पहले हम बात कर चुके थे कि हस्बैंड जो है वो कमा के लाएगा और वाइफ जो कमा के लाया है उसी के आधार पर पूरे परिवार का महीना भर या पूरे परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेवारी उसकी होती थी। अगर पति शाम को अगर 100 रुपया कमा के लाया है तो 100 रुपया में भी उसको भी ऐसे खर्च करना है कि कल के लिए 10-20 रुपए बचा लें। अगर कल बारिश हो गई, मजदूरी नहीं हुई, तो फिर वो 10-20 रुपए से वो पूरा का पूरा पेट भरने की कोशिश की जाती थी। परंतु उस समय हस्बैंड वाज ओनली द ब्रेड अर्नर ऑफ फैमिली, एकमात्र होता था। और सारे के सारे बाकी लोग जो थे वो घर में डिपेंडेंट होते थे उसी हस्बैंड पे, रादर उस मेल पे जो कि कमा के लाता था। तो जब डिपेंडेंसी थी तो आज के टाइम में परंतु देखने की कोशिश करें तो वाइफ भी आज कमाती है। वाइफ इज आल्सो अर्निंग रादर, चाहे वो छोटा मोटा जो भी उनका काम होगा, वो आज पति के साथ मॉडर्न टाइम में कंधे से कंधा मिला के वो खड़ी है। और वो दोनों के दोनों, हो सकता है कि कई बार तो एक ही ऑफिस में काम करने वाले हैं, एक ही सेक्टर में काम करने वाले हैं, और दोनों चाहे अपना बिजनेस है, चाहे वो बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइवेटली काम करते हैं, एनजीओ में काम करते हैं, या सरकारी तंत्र में काम करते हैं। तो आज दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो काम करते हैं, और काम करने के साथ साथ वो अपने हर जीवन के हर क्षेत्र में एक दूसरे के साथ आज संगनी और साथी की भूमिका में है। आज पति और पत्नी की भूमिका जैसे पहले होती थी ट्रेडिशनली, वैसी नहीं है। आज संगनी और साथी के रूप में एक दूसरे के साथ जो है दोस्ती वाला संबंध हो गया, कैंपेनियन हो गए, साथी हो गए, सखा भाव आ गया। सखा भाव हो गया। पहले मेल का डोमिनेंस वाला भाव होता था कि डोमिनेट मैं हूं, मैं घर का बड़ा आदमी हूं, रादर मैं ब्रेड अर्नर हूं, तो इसलिए आई एम डोमिनेटिंग ऑल द डिसीजन, ऑल ही वाज डोमिनेटिंग ऑल द डिसीजन ऑफ फैमिली। परंतु आज के टाइम में ऐसा नहीं। कोई भी डिसीजन लेना है तो दोनों पति पत्नी क्या बोलते हैं इकट्ठा होकर डिसीजन लेते हैं। और एक जो फिलो फैमिली का कंसेप्ट मैंने फैमिली में आपको बताया था कि फिलो फैमिली का, कि बच्चों का भी पूरा का पूरा अधिकार हो गया आज के टाइम में किसी डिसीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए। hence means there is a group of people rather comprises of father, मदर, देन किड्स, और वो सारा का सारा किसी फैसले को इकट्ठा होकर लेते हैं। तो ये रोल चेंज हो गया है आज के टाइम में, या पत्नी इज नॉट सपोज टू कुक एंड डू ऑल हाउस होल्ड एक्टिविटी विद इन द फोर वॉल ऑफ हाउस, शी इज आउट नाउ। एंड हस्बैंड मे बी अनएम्प्लॉयड, हस्बैंड बेरोजगार हो सकता है, पत्नी रोजगार वाली हो सकती है। तो वो रोल चेंज हो गया है। जब पत्नी जो घर में काम करती वो पति करेगा, और पत्नी जो पति करता था वो पत्नी करेगी। And wife is going out of house to just earn money and earn bread or do jobs, and whereas the husband may be at household और घर के अंदर वो सारे के सारे काम करने के लिए जो पति है वो सारा का सारा काम करता है। तो इस तरह से जो है असिस्ट करते हैं एक दूसरे को। ऐसा नहीं है कि जब घर को वापस आएंगे तो वहां आकर एक दूसरे को असिस्ट करते हैं। असिस्ट मीन कि सारे के सारे काम जो भी घर के हैं, घर के सारे कामों में पति भी आज के टाइम में हाथ बटाता है।
और पत्नी के साथ दोनों मिलकर गृहस्थी को अपनी चलाते हैं। लास्ट वन है मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। यहाँ चेंज हो गया, मैनेजमेंट चेंज हो गया। मैरिज वॉज एन important social institution since its existence, and it influenced many practices of organization, institutional as well। organization की और institution की जितनी practices होती थी उन सब को ये प्रभावित करता था। और मैरिज जो था ये इसी ग्राउंड पे वैलिड होता था कि जिसमें मैरिटल स्टेटस जिसको मिल गया उसके बाद ही वो सारी की सारी चीजें वैलिड होती थी। और उसमें जो भी वाइफ है या जो हस्बैंड है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते थे एट एनीवेयर आई मीन कि इन एनी गवर्नमेंट स्कीम, इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इन एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, शी इज माय वाइफ एंड ही इज माय हस्बैंड। तो इस तरह का पूरा वो रहता था। और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो गया, चाहे जीपीएफ हो गया, सारी हर जगह उसको एक नॉमिनेशन की सहूलत रहती है, नॉमिनेशन की सुविधा होती है कि अगर आप चले गए दुनिया से तो आपको जो पैसा है किसको मिलेगा, किसको मिलेगा। तो मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव आज चेंज हो गया है। वो सारी के सारी वो लीगल राइट्स जो हैं वो किसको मिलने हैं, वाइफ को मिलते हैं। और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कंपनसेशन भी वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो वाइफ को ही मिलनी है ऑन द वन हैंड। ऑन द अदर हैंड जो मैनेज करना था परिवार को, रादर विवाह में जो मैनेजमेंट थी सारी की सारी, वो भी आज के समय में चेंज हो गई है। नाउ इट इज नॉट मोर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मेंबर ऑफ फैमिली। अब परिवार के द्वारा उसको नहीं मैनेज किया जाता। अब मैनेजमेंट कंसल्टेंट आते हैं कि भाई आपके विवाह को मैनेज करना है, हमने विवाह को, जिसको हम मैरिज प्लानर बोलते हैं, वो प्लान करेंगे। बोलो भैया आपको क्या क्या खाना क्या है और पीना क्या है, से लेकर सारी की सारी स्नैक्स में क्या रहना है, सारी की लिस्ट दी जाती है। जब बारात आएगी तब क्या होना है, बारात के पहले क्या होना है, और बारात के बाद विदाई के टाइम में क्या होना है, रादर वो सारा का सारी चीजें जो है वो उस तरह से रहती थी। आज के टाइम में ये सारी की सारी चीजें इस तरह से रहने लगी हैं। पहले दरोगे का कंसेप्ट हमारे चंबा की अगर बात कर लें तो दरोगा वाज यूजुअली एन elder person of that very family who is supposed to manage or perform the role of this management consultant। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट आज के टाइम में आते हैं, मैरिज प्लानर हम जिनको बोलते हैं, वो सारे के सारे हमारे दरोगा जी होते थे। किचन को भी देखेंगे, वो धाम कैसे बन रही है, और सारे के सारे और कामों को भी देखते थे। यूजुअली वो घर का बड़ा व्यक्ति होता था या उस परिवार का जिस पे विश्वास है वो एक बड़ा व्यक्ति होता था और जो कि सारी चीजों को मैनेज करने में कैपेबल होता था। परंतु आज के टाइम में ये पर्सपेक्टिव भी सारा चेंज हो गया और आज के समय में जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज एंटायरली डिफरेंट। एंड आज पैसा फेंक तमाशा देख की बारी है, और पैसा फेंकते हैं तो सारी चीजें रहती हैं। Then we are shifting to now last aspect of this one. Last aspect, future of this marriage institution. तो ये सारे के सारे हमने ये चेंजेस देख ली, सारी चीजें देख ली, परंतु इसको देख के ये लगता है, आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। फिर क्या मैरिज सिस्टम रहेगा, जो ट्रेडिशनल मैरिज सिस्टम जो रहेंगे या नहीं रहेंगे। 2 4 5 6 पॉइंट है, उनको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। मैरिज इज सोशली रिक्वायर्ड फॉर सेक्स। रहेगा मैरिज, क्योंकि ये एक समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से सेक्स को संरक्षण देने का एकमात्र तरीका है। वी मे बी इन लिविंग रिलेशनशिप, वी मे बी इन दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हैं, हर जगह हम देखने की कोशिश कर लें, हम लिव इन रिलेशनशिप में रहे, किसी के साथ रहे, हम सेक्सुअल राइट तो हमें मिल जाएगा, परंतु सेक्स के कॉन्सिक्वेंटली जो हमें बच्चे जो पैदा होंगे उनको वैधता कौन देगा। वैधता देने का एकमात्र इंस्टीट्यूशन आज के समय में भी जो है दैट इज दिस मैरिज। सो मैरिज विल एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है मैरिज नहीं जाने वाला। आज के समय में जो है मैरिज इज नॉट कन्फाइनिंग अप टू सेक्सुअल रिलेशनशिप। marriage specially meant for the psychological disposition of emotions and sentiments to whom one has to share his emotions। हम अपने इमोशन अपने सेंटिमेंट किसके साथ शेयर करें, तो उसके लिए एक जो मैरिज है एक बहुत बड़ा सोशली अप्रूव्ड एक तरीका है जो कि आने वाले समय में भी रहने वाला है। हजारों लड़ाइयां हो, हजारों झगड़े हो, उसके बावजूद भी जो मैरिज है वो रहता है। और मैरिज जो है वो एक
क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी सेक्स वाइज अगर देखने की कोशिश करें तो इसे मान्यता देने वाला बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और ये रहेगा। देन फिल्टरिंग टाइम है। आप फिल्टरिंग टाइम में अगर देखने की कोशिश करें तो 1980 का दशक हम याद करते हैं, 70-80 वाला दशक याद करते हैं, तो दूरदर्शन की जो वो थी रीच थी बहुत ही लिमिटेड थी। आज के टाइम में देखें, आज के टाइम में हमारे पास जो है वो क्या है, आज के टाइम हमारे पास केबल टीवी आ गया है। केवल अब तो वाईफाई वाला सिस्टम भी चला गया, अब तो जो है ब्रॉडबैंड वाला वो क्या है वो क्या बोलते हैं फाइबर वाला सिस्टम आ गया है, जिसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम आपके साथ बात कर रहा हूँ, जियो ने तो कमाल कर दिया। अदरवाइज ऐसा जब मैं पीएचडी करता था, रादर रिसर्च करता, 2004 ऑनवर्ड की बात कर रहा हूं मैं, तब इतना बुरा हाल होता था कि गोला 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 वो घूमता ही रहता था, कुछ भी सामने नहीं आता था। वीडियो देखना, ऐसी बात करना तो बहुत सपने की बात होती थी। परंतु आज के टाइम में क्या हो गया, ये सब चीजें आ गई हैं, एंड टुडे वी डू हैव फिल्टरिंग टाइम आल्सो। आज विवाह करने की जरूरत नहीं महसूस होती, कोई क्लब में जा रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई दोस्तों का ग्रुप है, कोई क्या है कोई क्या है, और जहां और कई ऐसे इंस्टीट्यूशन आ गए हैं जहां वो जिसको अडॉप्ट करके हम मैरिज के लिए नहीं भी जाएंगे तब भी हमारा जो टाइम है वो पास हो सकता है और हमारा सब कुछ बढ़िया से सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन डेवलप हो गए हैं जिन्होंने मैरिज को रिप्लेस करने की कोशिश की है। तो इस तरह से पूरा का पूरा अगर देखने की कोशिश करें तो आज के टाइम में 24/7 इंटरनेट एज है, और उसके साथ मीडिया जो है वो 24 आवर है। सैटेलाइट टीवी जो है वो हमें अवेलेबल है, हंड्रेड्स ऑफ चैनल है, शॉर्टेज ऑफ एक्टिविटीज कोई नहीं है, शॉपिंग मॉल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, रिजोर्ट हैं, और कई ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे इस तरह की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। परंतु उसके बावजूद भी एक हार्ड फैक्ट है कि सारी इन मटेरियल चीजों के बावजूद भी मैरिज इज स्टिल प्रेवलेंट। और जब सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा आराम व्यक्ति को तभी मिलता है जब वो घर के अंदर एंटर करता है और अपने परिवार में होता है। परिवार बाय मीन जब उसका मैरिज के थ्रू जो उसका परिवार एस्टेब्लिश होता है, जब उसमें आएगा, बच्चे उसके आसपास होंगे, उसकी बीवी उसके आसपास होगी, मम्मी पापा आसपास होंगे, ओनली देन पर्सन इज फीलिंग हैप्पी। इट्स ए हार्ड फैक्ट इन स्पाइट ऑफ ऑल मटेरियल डेवलपमेंट व्हाटसोएवर वी डिड सो फार, ये एक हार्ड फैक्ट है। नंबर 3 है फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। लोग, महिलाओं की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई है उससे ये लगता है कि मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगा। महिलाएं बात बात पे गुस्सा करती हैं और तलाक देने की धमकी देती हैं, प्लीज डोंट माइंड, बुरा मत मानना। और उसकी वजह से जो है एक अलग से एक सिनेरियो जो है क्रिएट होने लगा है। और आज के टाइम में पुरुषों का शोषण ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू महिला। पहले बोला जाता है महिलाओं का शोषण होता है, आज पुरुषों का होता है। इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है, जिससे ये लगता है कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जो कि मैरिज जिसकी अंतरात्मा होती थी, वो थ्रेट हो रहे हैं। परंतु सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई इसके साथ एक साइड तो ये सत्य है, परंतु साथ में एक और हार्ड सच्चाई है कि जैसे मर्जी घूम ले, जो मर्जी हम बात कर लें, शाम को आना तो घर ही है ना, शाम को घर ही आना है। और घर में जब पहुंचते हम तो वी फॉरगेट एवरीथिंग, एंड इट इज अल्टीमेट household is the ultimate source of happiness for everyone whosoever is belonging to that very family। उस परिवार से जो भी संबंधित है उसके लिए अल्टीमेट जो सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ मात्र उसका परिवार है, और जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो ये फाइनेंशियल इससे भी नहीं होगा। और फ्यूर चिल्ड्रन का एक और नया कंसेप्ट निकल के आया है कि कम बच्चों की आज बात होने लगी है। आजकल तो ये भी बात होने लगी कि एक ही बच्चा काफी है, क्योंकि एक से ज्यादा हम नहीं पाल सकते। हालांकि देर कैपेबल टू डू मैनी मैनी थिंग्स, देर कैपेबल टू रेयर इवन 4, 5, 6 बच्चे, परंतु बोलते हैं कि एक ही बच्चा हमने करना है। इसकी वजह से हमारी जो TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जो है दैट इज डिक्रीजिंग, डिकेडल डिक्रीज वहां नोटिस किया गया है। और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि हमारी सोसाइटी में भी, हमारे मैरिज में भी एक वेस्टर्न आउटलुक आ गया है, वेस्टर्न आउटलुक आ गया है। परंतु फिर भी आज के टाइम में देखने की कोशिश करें तो डोनर स्पर्म्स को अपने डोनेट करता है और आर्टिफिशियल जो बच्चे हैं वो पैदा किए जाते हैं, इसलिए मैरिज की हमें जरूरत ही नहीं है। परंतु फिर भी सच्चाई यही है कि जैसे मर्जी आर्टिफिशियलिटी आ जाए, परंतु ओरिजिनल जो है वो ओरिजिनल ही है। और विवाह के बिना बच्चे तो हो सकते हैं, परंतु एक हस्बैंड के बिना वाइफ और वाइफ के बिना हस्बैंड, जो एक साइकोलॉजिकल जो डिस्पोजन है वो नहीं हो सकता।
सेकंड लास्ट है चेंजिंग रिलेशनशिप कल्चर। रिलेशनशिप में बदलाव हो गया है। मैंने पहले कहा कि पहले जो रिलेशन होता था वो अब दैट इज नो मोर नाउ, इट इज ए रिलेशनशिप ऑफ कैंपेनियनशिप है। और आज एक साथी और सखा की भूमिका, साथी और संगनी की भूमिका में है। और हेजल फ्री एक तरह का जो रिलेशनशिप है, अगर कोई हेजल फ्री मैंने बिना किसी परेशानी के होने वाला रिलेशन है, दैट इज ओनली मैरिज। इफ यू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद एनीवन बॉय और गर्ल, जो भी महिला पुरुष के साथ जो भी है, दैट इज हेजल फ्री। वहां कोई आपको क्वेश्चन नहीं करने वाला। अदरवाइज सोशली अप्रूव्ड कैंपेनियनशिप भी दैट इज आल्सो बिग थ्रेट। कहां बदनाम हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, वो सारी चीजें आती हैं। एंड पीपल अफ्रेड ऑफ सच थिंग्स। लास्ट वन है राइज ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी मैंने एक ही व्यक्ति के साथ सेक्स, एक ही सेक्स के साथ रहना, होमोसेक्सुअल मैरिज का जो प्रेवलेंस है वो होने लगा है। भारत सरकार ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान्यता दे दी है, जो कि मैरिज के लिए थ्रेट माना जाता है। एक ही मतलब लड़की का लड़की के साथ विवाह, लड़के का लड़के के साथ ही विवाह, विवाह तो नहीं होता एक किस्म का वो, और होमोसेक्सुअलिटी है वो, एक साथ ही वो रहते हैं और एक साथ ही वो सेक्स जैसी एक्टिविटी को भी करते हैं। इससे भी मैरिज को थ्रेट जो है वो महसूस हो रही है। और इसकी वजह से, परंतु सच्चाई फिर भी यही है, जो नेचर ने बनाया है, जो नेचर ने बनाया हेटेरोसेक्स की अगर नेचर बात करता है तो उसी में सच्चाई है, उसी में जीवन का आनंद भी है। थोड़ा सा रह गया है, सो कल देखेंगे। बाय।